Hi student, it's your English class and I am Virnesh Jaiswal welcomes you in your class, and today we will start the second term course of English literature. So everyone take out your English literature book. बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर से सेकेंड टर्म का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। और सेकेंड टर्म में आपका पहला चैप्टर है लेसन 8 मिस्ट्री ऑफ अ हेडलेस मैन फ्रॉम पेज नंबर 16। So every student open page number 60, chapter 8. Okay, now first of all I would like to introduce about the characters of the story. सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आर: फर्स्ट, सोनिका, a 10-year girl. Second, her parents Ashok and Pratima. Third, her uncle and his wife. And fourth one is her dog Bruno. Okay student, now see the theme of the chapter at a glance. First chapter start with Sonika visit to her uncle with her mother and returning to home. Second, description of the messy trek to their home. Third, Sonika's fear and tiredness of the way at night. Fourth, Sonika heard the sound of chasing someone. Fifth, Pratima swung lantern and sung songs to comfort her daughter, and they heard the barking of Bruno. Next, they meet with Bruno and Ashok and return their home. And at last, Pratima explained her fear to Ashok. Now see all the theme of the story one by one. Okay, student. First point of the chapter is Sonika visit to her uncle with her mother and returning home. Now read here, it is written, Sonika was a 10-year-old girl. She lived in a village with her parents. One day she visited her uncle Mahesh, her father's brother, with her mother. Her uncle lived in another village with his wife. In the evening they got ready to come back. Her aunt insisted them to stay there. Pratima, why don't you spend the night here? It's getting awfully late and it will be dark before you reach home. But her mother refused the proposal. सोनिका जो है अपनी माँ के साथ अपने चाचा के घर गई हुई है और वहाँ शाम हो जाती है। उसकी चाची उसे रोकती भी हैं कि आप यहाँ रुक जाएं, लेकिन उसकी माँ प्रतिमा उनसे कहती है कि नहीं, हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से वो देर के शाम में अपने अंकल के घर से बाहर निकलती है और उन्हें अपने घर जाने के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। ओके, नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेसी वे टू देयर होम. Read here, she secured her shawl around her shoulder and picked up the lantern which had already been lit. Holding Sonika's right hand, the pair proceeded on the 3-kilometer trek back home. Heavy rains during the last week had left the road very messy for anyone on foot. तो बच्चों यहाँ पे अब प्रतिमा जो है अपने शॉल को लपेटकर अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है उस 3 किलोमीटर के रास्ते पर, जो कि बारिश के कारण, पिछले हफ्ते हुई बारिश के कारण बिल्कुल कीचड़ से भर गया है। और वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है उनसे भी उन्हें गुजरना पड़ता है। रेलवे ट्रैक लगभग आधा किलोमीटर का है उस रास्ते पर, और उसके चारों तरफ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं और घाटियाँ हैं, उस घाटियों में वो अकेले ही अपनी बच्ची के साथ अपने घर की ओर बढ़ रही है और वो अपनी बच्ची को तरह तरह की कहानियाँ सुना रही है ताकि उसकी बच्ची अंधेरे और सुनसान रास्ते से डरे न। और वो उसको बड़े बड़े शहरों की कहानियाँ सुनाती है कि किस तरह बड़े बड़े शहरों में जो है लोग रहते हैं और ये रास्ते जो है कहाँ कहाँ जाते हैं। एंड द लिटिल गर्ल लव्ड हियरिंग हर मदर्स स्टोरी ऑल द बिग सिटीज फॉर अवे. और वो छोटी सी जो बच्ची है वो अपनी माता के द्वारा उस बताई हुई दूर दूर शहरों की कहानियों को बहुत ही पसंद करती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है. दैट इज सोनिकास फियर एंड टायर्डनेस ऑफ द वे एट नाइट. तो अब नेक्स्ट पेज पे आप देखें, स्टार्टिंग है, द सन वॉज सिंकिंग बिहाइंड द माउंटेन, शैडो रोज स्क्वेयरली फ्रॉम द dense wood on the both sides of the track. Rustling sound from behind the trees caused Sonika to jump, but her mother's soothing voice calmed her fears. It's all right child, just cows and dog. तो अब सूर्य डूबने वाला है, पहाड़ों के पीछे सूर्य डूब रहा है और उसकी परछाई जो है जंगल में
पेड़ों के बीच में से आ रही हैं। कुछ सरसराहट की आवाज़ें पेड़ों के बीच में से आ रही हैं जो कि सोनिका को डरा रही हैं, मगर उसकी माँ उसे शांत करती है और संभालती है कि बेटा कुछ नहीं है, ये सब केवल काऊ और डॉग है। वहाँ पर उल्लू की आवाज़ें भी आती हैं जो कि सोनिका और डर जाती है, वो अपने माँ का हाथ और कस के पकड़ लेती है और अंत में ये रात हो जाती है और वो देखती हैं कि उनके लालटेन का जो ग्लो है वो अब चारों तरफ फैल रहा है। यहाँ पे उस रात में चाँद भी नहीं थी और बहुत अंधेरी रात थी। सोनिका जो है अपने छोटे छोटे पैरों को आगे बढ़ाती है, मगर वहीं वो रास्ते में एक पत्थर से टकराती है तो उसकी माँ को एहसास होता है कि वो जो है अब थक रही है, इसलिए वो उसे थोड़ा आराम करने के बारे में सोचती हैं और कहती हैं, लेकिन बताती हैं कि वी विल रेस्ट अ वाइल्ड चाइल्ड, माई गेस इज दैट वी हैव लेस देन अ किलोमीटर टू गो। वो बताती हैं कि बेटा 1 ही किलोमीटर और चल रहा है, थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, that is Sonika heard the sound of chasing someone। तो जब वो आराम करके आगे बढ़ते हैं, सोनिका सडनली हर्ड अ साउंड, द साउंड केम फ्रॉम द डायरेक्शन दे हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम एंड द गर्ल stared into the darkness। It was very faint and unlike the other noises she had grown used to along the way। The slow sound was of someone walking and coming in their direction। अचानक ही सोनिका एक आवाज़ सुनती है जो कि उस दिशा से आती है जिस दिशा से वो आ रही होती हैं, और जब वो बच्ची अंधेरे में देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहाँ पे बिल्कुल फेंट रहता है, मतलब सन्नाटा रहता है और आवाज़ें आ रही होती हैं। आवाज़ धीमी आ रही होती है, ऐसी जैसे लग रहा है कि कोई उस दिशा से आ रहा है जिस दिशा से वो लोग आई हैं। तो अपनी माँ से पूछती भी है कि मॉम डू यू हियर दैट, मम्मी क्या आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है? तो उसकी माँ कहती हैं क्या है बेटा, कुछ नहीं है, और वो उसको और अपने पास ले लेती हैं और आगे बढ़ते हैं शुरू कर देती हैं। प्रतिमा यानी उसकी माँ जो है वो अपने बच्चे को संभालती है, गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चलो जल्दी चलो, हम लोग घर पहुंच जाएंगे, पिताजी वरीड होंगे यानी चिंतित होंगे। तो प्रतिमा अपने लालटेन को लेती है और अपनी यात्रा पर आगे चलने लगती है, लेकिन बच्ची को अभी भी डर लग रहा है। वो कहती है मॉम आई हियर इट अगेन, समवन इज चेसिंग अस। वो फिर अपनी माँ से कह रही कि माँ मैंने फिर से सुना कोई हमारा पीछा कर रहा है। Then come on the next point, Pratima swung the lantern and sang the song to comfort her daughter and they heard the barking of Bruno। अब जब बच्ची उनकी बार बार डर रही है प्रतिमा की, तो प्रतिमा लालटेन बार बार आगे पीछे कर रही है, उसको दिखा रही है कि बेटा देखो कोई नहीं है, और वो गाना गा रही है ताकि उसकी बच्ची जो है उसका डर खत्म हो सके। यहाँ देखिए लिखा हुआ है टू कम्फर्ट हर डॉटर प्रतिमा स्वंग द लालटेन अराउंड एंड सेड सी नो वन इज बिहाइंड अस। इस तरह से वो लालटेन दिखाती है और बच्ची को बताती है कि पीछे कहीं कोई नहीं है। उसकी बच्ची उसका हाथ टाइट पकड़ लेती है, लेकिन प्रतिमा उसके डर को और कम करने के लिए तेजी से गाना शुरू कर देती है और कहती है बेटा अब हम लोग को बहुत कम चलना है, चलो फटाफट चलते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक डॉग यानी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी माँ उसे बताती हैं कि बेटा सी चाइल्ड वी आर ऑलमोस्ट होम, ब्रूनो विल बी रनिंग अप टू मीट अस। बेटा देखो हम लोग घर के पास आ गए हैं और ब्रूनो हमसे मिलने आ रहा है, वो बहुत तेज है, वो बड़े बड़े पहाड़ के शेरों को भी दौड़ा लेता है, तो ये पीछे आने वाला कौन है, तुम डरो मत, हम लोग जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें वो लोग अपने डॉग ब्रूनो से और अपने पापा से वो सोनिका मिलती है। दैट इज़ द नेक्स्ट दे मीट विथ ब्रूनो एंड अशोक एंड रिटर्न टू होम। तो जब उनको आवाज़ सुनाई देती है आगे बढ़ती हैं तो द डॉग रेस्ट अप एंड द टू नियरली बैंग्ड इनटू हिम एज दे स्टेप्ड डाउन ऑन द रफ रोड फ्रॉम द रेलवे ट्रैक दैट लेड टू देयर होम। जैसे ही वो लोग रेलवे ट्रैक से नीचे उतरते हैं वो कुत्ता वहाँ ब्रूनो आ जाता है और वो लोग उससे लिपट जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है प्रतिमा इज़ दैट यू, कि प्रतिमा क्या ये तुम हो? तो ये प्रतिमा के पति की आवाज़ रहती है यानी सोनिका के पिता की आवाज़ रहती है। अब वो दोनों का डर खत्म हो जाता है और वो दोनों अपने पति और पिता के साथ घर को वापस आ जाती हैं। और अब वहाँ आराम सबको मिलता है, बच्ची को भी आराम मिल जाता है और उसकी माँ को भी आराम मिल जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी
डरी हुई थी। और लास्ट पॉइंट वही है कि प्रतिमा एक्सप्लेन्ड हर ओन फियर टू अशोक। तो बच्चों यहाँ देखिए आखिरी पैराग्राफ में बता रही है प्रतिमा, अशोक, आई हर्ड द स्टेप, आई डिडंट वॉन्ट टू फ्राइटन द चाइल्ड, आई केप्ट सिंगिंग एंड स्विंगिंग द लालटेन around and telling her there was nothing to be afraid. But Ashok, just before we got off the track, I turned the lantern around one last time. That's when I saw what was following us. I saw the figure of a man without a head. तो वो बता रही है अशोक को कि अशोक, मैंने भी आवाज़ सुनी थी, मैं अपनी बच्ची को डराना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं गाना और लालटेन को हिलाना चालू रखी ताकि वो डरे ना। लेकिन अशोक, जैसे ही हम लोग ट्रैक से उतरे थे, मैंने अपना लालटेन पीछे किया तो इस समय मैंने देखा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वह कोई आदमी था और वो आदमी भी बिना सर के था, यानी मैंने बिना सर वाला आदमी देखा। और यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, डर हमें कभी नहीं डरना चाहिए, अगर डर आता भी है तो इसको इग्नोर करना चाहिए, यही हमारी इस कहानी से शिक्षा मिलती है। नाउ रीड द चैप्टर वंस अगेन एंड सी द वीडियो अगेन एंड fill the exercise by your own self. Okay, that's all. Thank you.